Hello everyone, Assalamu alaikum to all of you who have joined the session. So आज का workshop we are specifically doing for all the bug bounty requests that we've been getting. Before we start the session officially, I just want to introduce myself. I am Sonia Shanur and I'm part of the SheSec community, and we're here to help everyone with you to get on board with cybersecurity and get started. And that's the reason why we have this workshop at the moment. Jisme we have the very wonderful Mr. Mohammed Khizr Javed. Khizr has been working in the cybersecurity domain for a very long time, around 6 to 7 years, and he has been pursuing bug bounty within that duration as well. So Khizr will be the speaker for this workshop, and I would now pass the mic to Khizr. So Khizr, over to you. Assalamu alaikum everyone. Hope you guys are doing great. I hope my you can hear me. My name is Mohammed Khizar Javed, and as Sonia mentioned that I have been doing bug bounty from some time and also doing some sort of pen test and project based works. So I try my best to share as much as I can, and I will try to share as much as I can during this session. Our main agenda today will be to talk about bug bounty, how you can start in it, how you can excel in it, what mistakes, because a lot of people here I know that already are doing bug bounties. So it sometimes get a little bit difficult for them to pass a certain limit in their bug bounty journey. So we'll try to eliminate that, and I'll try my best to share as much information as I can on bug bounty. I will be presenting some slides, but I'll make sure that this is not only a slide based session. So I'll give you guys some reports example, and also we'll talk about some tools and stuff that we can use doing our testing. So I'll start to present my screen now, and I hope my introduction was clear because I'm not sure if you guys, most people here might have an idea who I am, but I am just a student, just like you all. So let's start and let's see what we can do from here. Okay, so yes, so our the title of this session will be Bug Bounty for Rookies, and our agenda, as I mentioned before, it will be about bug bounty, basically uh, about importance of it, how you can excel in it, and we'll talk about some common vulnerabilities, use case of these vulnerabilities, and common mistakes in bug bounty community or bug bounty hunting that most people makes. And as requested before by some people, I will also talk about a little bit about freelance side of bug bounty and pen test. So if you guys have any questions, we'll definitely take questions during the session and as well as at the end of the session as well. So if you guys have any questions, you guys can post it in the chat box, and I'll look at it and I'll try my best to answer them. So let's talk about bug bounty first. What is bug bounty mainly? Because I am not really sure about most people are not sure about what bug bounty actually is. So just a basic definition of bug bounty is paying rewards to individual independent security researchers for finding and responsibly reporting vulnerabilities in the products. So in easy words, it's just like a person who reports a vulnerability, reports some sort of exploit, some sort of bug in another system that allows you to find and research on their product, and you get paid for it. That's basically bug bounty. There is another side of bug bounty that usually you don't get paid in it. That's what we call VDP, Vulnerability Disclosure Policy or Vulnerability Disclosure Program. That's where your good faith comes in. But mainly, bug bounty is when you get paid for a reward. It can be in shape of money. It can be as you know, आपको gifts दिए जा सकते हैं that usually we call swags in programs, or
This is how bug bounty community works. About major players, we already, all of us already might know, Google have paid around 5 million in bug bounty last year, and same as Facebook, Microsoft, Apple. Apple have started paying public bug bounties around 2 years ago. Alibaba is a major player in bug bounty as well. So these are some key players in bug bounty that actually help people by paying the bounty that you for a report that you'll have sent them. That should be the valid report. About bug bounty and its importance. Let's talk about it importance. So bug bounty, for me, I think bug bounty is pretty important domain in cybersecurity because it can be an entryway for many of you guys. बहुत सारे लोग जो हमारे इस कंट्री में अगर हम देखें तो उन लोगों ने बग बाउंटी से ही स्टार्ट किया था एंड दे एक्सेल्ड अप टू मेजर गोल इन देयर company. So um, I was looking for some questions, but there aren't any right now. So basically, bug bounty is really important, and anyone who has the will to study and learn can become a bug bounty hunter, as said by Martin, who is the CEO of HackerOne and co-founder as well with Jobber. And basically, for bug bounty, you don't need to be an experienced programmer. Bug bounty is you can find bugs in open without having the programming knowledge, but having enough programming knowledge will definitely give you a plus point in bug bounty. So it's kind of a thing where you'll have to manage your learning experience with your working, and you'll have to make sure that you know enough to start with, and then you can just go ahead and excel yourself with every step you take. So it's not like you're just gonna sit at a point and just keep digging into stuff without learning anything. You must learn something before, and enough you should have enough programming experience or enough coding experience or enough understanding experience so you can understand a product and jump right ahead into it for testing. So next slide would be what to learn first. ये क्वेश्चन मेरे से बहुत दफा पूछा जाता है कि आई वांट टू स्टार्ट इनटू बग बाउंटी, लेकिन मुझे नहीं समझ लगती कि वेयर शुड आई स्टार्ट. So you should everyone should start from where all of us did. Starting is the same point. You should first learn about computers. What is a computer? What is website? What is internet? How it works? You should know the basic networking tactics. You should know about TCP, IP. You should know about CIA. You should know basic stuff about computers so that you can use it. अक्सर ये होता है कि बहुत से न्यू कमर्स जो आते हैं बग बाउंटी के अंदर, सो वो कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं. व्हाट दे मिस इज बेसिकली दे डोंट नो अबाउट नेटवर्किंग, they don't know about ports, they don't know about sometimes basic web services. इससे वो बहुत सी चीज़ें मिस भी कर देते हैं और उनको बहुत टाइम लगता है टू गेट इनटू अ नेक्स्ट स्टेप. प्रोग्रामिंग बेसिस, यस यू शुड नो एज आई एक्सप्लेन बिफोर कि आपको इतना प्रोग्रामिंग और कोडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए. uh, खाली हेलो वर्ल्ड से काम नहीं चलता. So you should know at least enough to build your own tools. It's not like कि आपने बहुत complex tool बनाने हैं for your starting, but you should know about how to extract subdomains of a website or maybe scrape a website enough. So आप या अगर आपने खुद भी tools नहीं बनाने तो you should have enough experience कि आप अगर कोई GitHub से कोई tool download कर रहे हैं या कोई exploit download कर रहे हैं तो you can read it and you can understand it. होता क्या है कि many times I have seen people post exploits with commands that might be hurtful to your own device. एंड बहुत सारे जो मेरे जानने वाले या हमारी कम्युनिटी में लोग हैं जो जंप इन करते हैं लेटेस्ट सीवीईज को डाउनलोड करने के लिए या लेटेस्ट चीज़ों को एक्सप्लॉइट्स को टेस्ट करने के लिए, वो इस चीज़ में ध्यान नहीं देते कि कोड क्या है, व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली. दे जस्ट रन द कोड. उससे ये होता है कि you can just hurt yourself or also your target as well. Bug bounty, like I explained before, you'll have to responsibly disclose the bug.
इसके अंदर यू आर नॉट अलाउड इट टू एक्सप्लॉइट इट, यू आर नॉट अलाउड इट टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, बिकॉज दैट्स जस्ट गोना मेक नेगेटिव रिमार्क्स ऑफ योरसेल्फ एंड आपने अपनी बाउंटी कैंसिल करवा दी है. So first of all, you should know basic of web and networking basics about most of the stuff, and you should also know basics of programming. You should understand a code. It's not necessarily you should, if you cannot write it properly. I cannot write a proper code still, but I can understand it. I can know what a code is doing. I can modify it, and मैं उसको अपने लिहाज से कर सकता हूँ, and I can still write a few lines, few hundred lines. I can make my own tools. So you can get even better than anybody else by just learning your basics and keep digging in stuff. Next will be vulnerabilities and exploitation. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको बग बाउंटी में एक्सप्लॉइटेशन करने की इजाजत नहीं होती, बट हम खाली बग बाउंटी तक नहीं रहना चाहते. We need to take advanced steps as well. So you should definitely learn about exploitation. You should definitely learn about vulnerabilities, बिकॉज जब आप वनएबिलिटीज के बारे में सीखेंगे, ओनली देन यू कैन जस्ट बी एबल टू एक्सेल योर सेल्फ एंड आप उसके बाईपासेस तैयार कर सकेंगे. यू विल बी एबल टू, बिकॉज देर आर a lot of vulnerabilities that are just block on browser level now. So ऐसे नहीं है कि you will just learn about one two vulnerabilities and you will start getting into bug bounty. आपको बहुत सी चीजें यहाँ पे मैनेज करनी पड़ेंगी. आपको vulnerabilities के लिहाज से vulnerabilities के बारे में सीखना पड़ेगा. आपको सर्टेन चीजें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सीखनी पड़ेंगी जो आप टेस्ट कर रहे हैं. बिकॉज होता यह है कि कुछ प्रोडक्ट्स अक्सर ये होता है कि आर ऑलरेडी टेस्टेड बिहाइंड, दे आर टीम्स बिहाइंड देम. तो ऐसे नहीं है कि यू विल बी एबल टू फाइंड अ बग as soon as you sit there. You can take even months and you won't find anything there. So you need to understand the vulnerabilities. You need to see what kind of vulnerabilities can exist in a kind of system. आपने उसकी एक्सप्लॉइटेशन सीखनी है, एंड एक्सप्लॉइटेशन कैन ऑल्सो हेल्प यू इन अ वे, ताकि आप अगर कोई बग आपने फाइंड किया है एंड देन समहाउ इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको उनको नहीं समझ लगी या दे आर आस्किंग फॉर एन एक्सप्लॉइटेशन सिनेरियो, तो आपको पता हो कि हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट दैट बग टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट सिस्टम और यू गोना टेक ओवर दैट सिस्टम. Many of us, usually I do most of the time, just for if we find a XSS, that is cross-site scripting, हम इसके बारे में बात करेंगे. But होता क्या है, we find it, we just do alert one or alert ABC and whatever it is, and we just report it. बहुत सी companies इसको accept कर लेती हैं as the basic steps, but you only gonna get 50, 100, 200, $500 for that kind of report. But if you can steal cookies of another user, you can show them exploit scenario. The bounty will increase from 500 to 1000 or 1200 or 1500 at any moment. It just depends on what how you can understand the vulnerability, how you can chain them, and how you can take advantage of a system. अच्छा, उसके अलावा like it's written here कि vulnerability, I talk about VDP and bug bounty. There's a huge difference between VDP and bug bounty. You should not expect money from VDP, because बहुत से मेरे दोस्त हैं जो मुझे टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैंने रिपोर्ट किया, we didn't get anything. So VDP and bug bounty are complete different things, and you should focus on VDP at first ताकि आपको experience हो जाए, for your experience. But at a certain level, you should definitely migrate from VDP to bug bounty and discourage free bugs like we said, and start getting paid for what you do. Like we talk about major players in bug bounty, Google, Facebook, Microsoft. ये सब अपने VDPs या अपने bug bounty programs अपने system पे, अपनी websites पे चलाते हैं. But we need a place, we need a marketplace, we need a freelance website to connect with the customers of those websites, and जो हमें allow करें testing के लिए. हम अपने जहाँ पे अपने जो हमने जो skills ऊपर learn किए हैं, जिसमें हमने time लगाया है, हम उनको use करें. तो उसके लिए बहुत से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे कि बकक्राउड, हैकरवन, सैनेक एंड इंटीग्रिटी एज वेल, or Cobalt. There are a lot of platforms, but it's not like you're always going to stick to one platform as well. You are not going to put all your eggs in one basket. आपने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है, अपनी प्रोफाइल्स को डाइवर्सिफाई करना है, अपने आपको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करके, आपको ज़्यादा
फाइनेंशियल गेन भी होगा और आपको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करके। तो आपने प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी सीखना है। इट्स नॉट जस्ट गोना बी लाइक यू गोना क्रिएट अ प्रोफाइल एंड यू जस्ट गोना go select a customer and start testing. You're gonna learn their policies. हर प्लेटफॉर्म की एक पॉलिसी है अबाउट सर्टेन बग बाउंटी प्रोग्राम। जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं, उनकी पॉलिसी है कि यू आर नॉट अलाउड टू एक्सप्लॉइट अ बग। अगर आपने वो बग एक्सप्लॉइट कर लिया, यू हैव ऑलरेडी लाइक 100 अदर रिपोर्ट्स, बट आपकी वो सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो ज़ाया हो सकती हैं ओनली बाय पासिंग वन पॉलिसी। तो यू गोना मेक श्योर कि आप कोई पॉलिसी बाईपास ना करें। आपने उनकी पॉलिसीज पढ़नी है। देयर आर लॉट ऑफ पॉलिसीज। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 100 pages की पॉलिसीज पढ़ें। यू जस्ट गोना मेक श्योर दैट बेसिक एथिक्स, बिकॉज bug bounty is also a part of ethical hacking. So you're just gonna remain ethical and try your best to comply with their policies. हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम, ताकि अ, हमें आइडिया हो जाए कि जो हमारे साथ यहाँ पे जितने भी दोस्त मौजूद हैं, इन लोगों को थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि नहीं हुआ अबाउट बग बाउंटी, व्हाट इट इज एंड हाउ यू कैन स्टार्ट लर्निंग अबाउट बग बाउंटीज। सो आई एम गोना टेक क्वेश्चंस हियर। सो So everyone, जिसके पे कोई भी questions है, you guys can drop it in the chat box and because I can read it from there and answer your questions live. okay, Mohammed Yaqub, okay, how can you we find VDP programs? Good question. So basically VDP programs आपके there are a lot of lists जहाँ पे आप VDP programs find कर सकते हैं। I remember there is a company called Fire Bounty, firebounty.com. You can just go to their website. Let me share my screen again. So this is what we call Fire Bounty. अगर आप firebounty.com पे जाएंगे, so you're gonna be able to find a lot of there are like around 20,000 something policies here, जो कि आप यहाँ से find कर सकते हैं। इसी तरह HackerOne पे भी list है, Backward पे भी list है। There are list from almost every country except Pakistan. इंडिया की भी हैं, पाकिस्तान की नहीं है। सो आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें आप अपनी तरफ से फिल्टर्स लगा सकते हैं कि यू नीड स्कोप बेस्ड, आपको नेम बेस्ड चाहिए। सो इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या फाइंड कर रहे हैं। So this is how you can find VDB programs. There is another way. You can use Google Docs. You can just type vulnerability disclosure program or VDP, and you're gonna find a lot of it. There are a lot of websites that post their VDPs on security page. So you're just gonna go to security or security.txt, and you're gonna find their VDP policy or VDP page. Anything else? So I guess we should. Okay. How do we read policies of any platform? Also, how to check that not bypassing any policy before reporting any bug? Okay. Let me rephrase the VDP thing. So let me open a policy of some sort. Okay. I'm gonna share my screen again with you guys. ओके, सो अगर हम गूगल पे जाते हैं एंड आई जस्ट टाइप VDP प्रोग्राम, देयर इज अ लॉट ऑफ लिंक्स हियर। मैंने ये लिंक सेलेक्ट किया, so that's called that was vulnerability disclosure program, VDP. VDP basically bug bounty से difference इस तरह है, to answer the question of Noor, कि VDP is not necessarily paying you. VDP में आप as a user of that company, as a student,
एज अ लर्नर आपको उन्होंने अलाउ किया हुआ है, यू कैन टेस्ट अवर प्रोडक्ट, और इवन इफ एक्सीडेंटली आपको कोई एक्सप्लॉइट कोई इशू इस तरह का मिलता है, दैट माइट बी सिक्योरिटी इशू, यू कैन रिपोर्ट इट टू अस, लेकिन हम उसके ऊपर एक्शन आपके खिलाफ कोई नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप पाकिस्तान की किसी कंपनी टेलीनॉर के पास जाते हैं एंड यू फाइंड दैट टेलीनॉर का कोई डेटाबेस, आप यू कैन एक्सेस इट एंड यू कैन डिलीट एवरीथिंग। अगर आप टेलीनॉर के पास जाते हैं तो मोस्ट लाइकली टेलीनॉर either gonna sue you, either gonna report you, or either not even gonna reply to you, because they don't have a VDP policy, public, they don't allow you to test their product। अगर आपको एक्सीडेंटली भी मिला है तो they might end up having you might end up having issues with them। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल डेटो के पास जाते हैं एंड यू टेल देम के आई हैव फाउंड अ इशू इन योर प्रोडक्ट जहाँ पे मुझे आपके यूजर्स का सारा डेटा लीक हो रहा है, सो दे टेल यू कि यू कैन गो टू अवर लीगल पेज वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने प्रोग्राम के सारे रूल्स मेंशन किए हैं। सो दिस इज हाउ आई एम गोना आंसर द क्वेश्चन ऑफ मोहम्मद अजहर, कि आपने प्रोग्राम के रूल्स पढ़ना है, रूल्स को देखना है, आपने उसको चीज़ों को देखना है कि इफ़ यू आर मिसिंग एनीथिंग, हो सकता है कि उन्होंने यहाँ पे ये स्कोप में डोमेन मेंशन ही ना किया हो, दिस डोमेन इज नॉट इन देयर स्कोप बट दिस इज ऑन बाय देम। आपने इसको अगर टेस्ट किया है तो दैट्स बेसिकली bypassing their policy, they might not say anything about that but they might even not acknowledge your report। so आपको ये चीज देखनी है, आपने उसको पढ़ना है। इसी तरह उन्होंने रिपोर्ट के बारे में लिखा हुआ है कि राइट टू मॉडिफाई द टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ दिस प्रोग्राम, वो किसी टाइम भी चेंज कर सकते हैं। सेफ हार्बर बेसिकली के एनी एक्टिविटी कंडक्टेड इन अ मैनर कंसिस्टिंग विद द प्रोग्राम विल की, बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कि हम आपको अथोराइज करते हैं। तो बेसिकली वीडीपी का मकसद ये होता है कि दे अथोराइज यू टू टेस्ट but not take advantage of it। Another answer for Muhammad Azhar's question, that would be two, three types of, as beginner, we should focus on the bugs and functionality. Mariam, I'm gonna come back to your question in a minute। पहले मैं वो question pass कर दूं because it's an important question जहाँ पे है कि how do we read policies of any platform। प्लेटफॉर्म की policies read करने के लिए users gonna go hackerone.com and sorry, I cannot show my reports here publicly। दैट्स अनदर पॉलिसी बाईपास, कि अगर मैं अपनी रिपोर्ट्स जो कि प्राइवेट प्रोग्राम्स को हैं वो मैं करता हूँ तो वो आपके उसके खिलाफ जाती है उनकी पॉलिसी के। तो आई एम गोना बी लाइक HackerOne policy। So you're gonna go to HackerOne's privacy policy। That's it। बेसिकली अभी एक प्लेटफॉर्म की प्राइवेसी पॉलिसी है जहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि हम ये भी, बल्कि उनकी ये उनकी प्राइवेसी पॉलिसी है, बट देयर आर लॉट ऑफ पॉलिसीज फॉर देयर प्रोग्राम। जब आप कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको डेटो के प्रोग्राम से इनविटेशन आया है फॉर बग बाउंटी प्रोग्राम, तो उन्होंने आपको ये एक लिस्ट दी हुई है ऑफ एवरीथिंग के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, प्रोग्राम्स के रूल्स क्या हैं, स्कोप क्या है, आपको हम किस तरह रिकग्नाइजेशन देंगे, कैसे रिपोर्टिंग की जाएगी, आपने किस ईमेल पे भेजना है, क्या लीगल राइट्स हमारे पास हैं, क्या लीगल राइट्स आपके पास हैं व्हेन यू विल रिपोर्ट a bug to us। So for a platform, you're gonna read the platform's policy, and for uh, uh, what we say for a program, you're gonna read the program's policy। And आपने देखना है कि कोई चीज़ आप उसमें bypass ना कर रहे हो। And most importantly, बहुत चीज़ें that's unethical कि आप किसी यूजर का डेटा ना यूज कर रहे हो for your own gains, तो आपने ये भी देखना है। Because all over the world, cyber crimes are getting strict, even in Pakistan। So you're gonna just play safe here। आई होप अजहर और नो दोनों के क्वेश्चंस कंफ्यूजन्स दूर हो गए होंगे। सो आई एम गोना टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू थ्री टाइप्स ऑफ बग्स। अच्छा मरियम, बेसिकली that can be done as a beginner, that you can just follow one or two kind of bugs, but that's gonna take a lot of time for you to learn new things, because इस तरह होता है कि आप then you will only be keep jumping from one program to another। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दिन गूगल को लेके बैठेंगे और आप वही दो तीन चीजें ढूंढ रहे होंगे जो हर कोई ढूंढ रहा होगा। सो इट्स नॉट गोना गिव यू एन एडवांटेज ऑफ एनीथिंग। इस तरह
अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है तो देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स, हैक द बॉक्स, ट्राई हैक मी, पेंटेस्टर एकेडमी, जहां आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं. देयर इज GOAT, आई रिमेम्बर. देयर इज a lot of vulnerable DVWA, a lot of websites, a lot of host that programs that you can host yourself. और आप उनको होस्ट करके तो आप उसको सीख सकते हैं. बट गोइंग अवे एंड एक वक्त में सेम चीज को बार बार टेस्ट करने से आपकी उसमें प्रैक्टिस तो होगी, बट यू वॉन्ट बी एबल टू गेट एनी एडवांटेज फ्रॉम इट. आप इसी तरह से एक्सेस ही टेस्ट करते रहेंगे और एक वक्त आएगा कि आप थक गए कि आई कैन नॉट लर्न एनीथिंग न्यू from it or from anything. So you'll just gonna quit. So we are not going to quit. We're just gonna excel ourselves to a next approach. आपके क्वेश्चन का ये पार्ट बिल्कुल सही था कि every functionality of that site. But how about test that functionality of the site instead of testing every functionality में वही bugs, दो तीन types of bugs. So हम यहाँ से अगर और कोई questions हैं तो I'm gonna take questions. Otherwise, I'm gonna move on to the next slide. I guess let's move on to another slide. Awesome. ठीक है Khizr, you can move on to the next slide, and everyone else, just another reminder, any questions you guys have, you can leave it on the chat box here, and Khizr can take it from there. Khizr, over to you. Okay. uh, about इनिशियल अप्रोच टू अ प्रोग्राम. अब हमने पीछे ये तो देख लिया कि बग बाउंटी होती क्या है, मेजर प्लेयर्स कौन से हैं, हाउ यू कैन लर्न इट. अब लर्निंग का जो पार्ट है मैंने बहुत बेसिक्स रखा है, अभी मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया इसमें आपको, वो हम आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा. बट इनिशियल अप्रोच जो होनी चाहिए आपकी टू टेस्ट एनीथिंग. लेट्स से यू हैव लर्न अबाउट VDPs, यू नो व्हाट bugs are, you know what things to do. अगर हम bugs की बात करें तो they are OS top 10. Basically, after every few years, they just list down most crucial type of bugs in a list from 1 to 10. और उसके अंदर फिर सब कैटेगरीज होती हैं, तो यू कैन check that as well on os.org, I guess. So there is a list of F10. But let's talk about how you are gonna initially go and take advantage of your target. How you gonna initially approach it. So सबसे पहले select the target that suits you proper. ऐसे होता है कि अक्सर लोग जिनको GraphQL का आइडिया नहीं है, they just go and start testing the GraphQL functionality of a program. जब आपको उस चीज का आइडिया नहीं है तो you just gonna waste your time and you are not gonna learn anything from it. तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले आपने वो टारगेट सेलेक्ट करना है जो आपके उसमें है, आपके सूट करता है, आपको जो आप जिसकी आपको समझ लगती है, जो चीज़ आपके लिए बेटर है. आई एम नॉट सेइंग दैट के यू शुड नॉट गो एंड टेस्ट GraphQL वाली साइट, OAuth वाली साइट, बट जस्ट टेक इट स्लो एंड वो टारगेट सेलेक्ट करें जो आपको सूट्स करती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मैं बेसिकली दो किस्म के टारगेट सेलेक्ट करता हूँ. आइदर इट गोना हैव अ लॉट ऑफ स्कोप, लाइक जिसमें ज्यादा सारे डोमेन्स हो, ताकि मुझे एक वाइडर एरिया, सरफेस एरिया मिल जाए टेस्टिंग के लिए. और आइदर आई टेस्ट समथिंग जिसमें सिर्फ एक डोमेन हो और ज्यादा सारी फंक्शनैलिटीज हो, ताकि मुझे वही एक डोमेन पे रहते हुए ज्यादा सारी फंक्शनैलिटीज मिल जाए. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सिलेक्ट करना है टारगेट को. अब टारगेट सिलेक्शन जो है वो हम लोग डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं. अगर हम लोग जाएं, let me share my screen again. If you go to Spotify's bug bounty program page, so अगर हम उनके देखें तो देयर इज अ पॉलिसी, कंप्लीट पॉलिसी उन्हें लिस्ट डाउन की हुई है, उनने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स लिखे हुए हैं, उनने अपने इन स्कोप एंड आउट ऑफ स्कोप इश्यूज लिखे हुए हैं, उनने अपनी बाउंटी कैटेगरी लिखी हुई है कि $250 से $2,000 तक. एवरीथिंग लिस्ट है, बट द मेन थिंग हियर इज स्कोप. हमने स्कोप देखना है. अब अगर आपके लिए इजी है टू अंडरस्टैंड दिस स्कोप,
or understand this scope, so you can go and select this target. वरना आपको एक टारगेट जिस अब देयर इज अ शॉपिफाई प्रोग्राम, अगर हम उसके टारगेट्स में जाते हैं and you are not able to do developed apps, or you're not able to test their iOS app, or you're not able to test their third party apps or scripts, तो you just gonna waste your time. सबसे पहले आपने वो टारगेट सेलेक्ट करना है जो टारगेट आपके आपकी टेस्टिंग स्टाइल, आपकी मेथोलॉजी और आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी स्किल्स को मैच करे. अगर आप समझते हैं कि शॉपिफाई का ये डोमेन क्योंकि वाइड स्कोप डोमेन है और इनके सब डोमेन्स इन स्कोप हैं, और आप उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर सकते हैं, और आप समझते हैं कि दिस इज समथिंग जो आपको समझ लगती है, तो यू शुड डेफिनेटली गो एंड टेस्ट दिस. वरना उसके अलावा आप कोई और प्रोग्राम ऐसे सेलेक्ट कर ले जो आपको सूट करता हो, आपको उसकी समझ लगती हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फेसबुक के हैवी यूजर हैं तो यू जस्ट गोना गो एंड स्टार्ट टेस्टिंग फेसबुक. फेसबुक को हम आगे एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, लेकिन फेसबुक में लोगों को छोटी से छोटे बग के भी बाउंड्रीज मिलती है. बट फेसबुक को टेस्ट करना इज नॉट ईजी. इट्स नॉट फॉर एवरी वन, बिकॉज उसमें इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट है, इतनी ज्यादा फंक्शनैलिटी है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो स्टार्ट स्मॉल, start to with a target that suits you, start with something that you understands properly, and उसके बाद आप आगे जाएं. अच्छा, प्रोडक्ट आ गई, गाइडलाइंस प्रॉपरली हमने रीड कर ली, हमें ये समझ लग गया कि हमारा हमने टेस्ट क्या करना है. तो अब हम चलते हैं पार्ट में कि हमारी इनिशियल अप्रोच में क्या ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो कि हम अपने बग बाउंटी जर्नी को एक बेटर बना सकें, हम उसमें से अंडरस्टैंड कर सकें. बट I'm gonna take a question. इधर एक क्वेश्चन आया हुआ है. Do we have to test all mentioned targets, or we can select any? You can select anything. Bug bounty is open for you. You can test anything. Uh, हम बग बाउंटी में अगर तो आप एक प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं, दैट्स गोना बी अवर लास्ट थिंग टू डिस्कस. बट अगर आपको एक सर्टेन टारगेट गिवन है कि आपने सिर्फ ये टेस्ट करना है, तो आपने सिर्फ वही टेस्ट करना है. लेकिन अगर इन स्कोप में आपको 5 टारगेट्स गिवन है और आपको समझ लगती है कि यार मैं ये 3 नहीं कर सकती या कर सकता हूँ, लेकिन ये कर सकता हूँ, तो आप उसको चूज कर सकते हैं. इट्स नॉट गोना इट्स देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन टेस्टिंग अ सर्टेन टारगेट until unless it's in out of scope. अगर वो आउट ऑफ स्कोप है तो आप उसको आउट ऑफ स्कोप ही रहने देंगे, आप उसको अपनी टेस्टिंग में नहीं लाएंगे. अब हम टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, वी नीड टू डू reckon on a target. के हमने reckon basically a word comes from, I guess, from military side, जहाँ पे किसी टारगेट की इंफॉर्मेशन कलेक्शन हम उसको अंडरस्टैंड करें, हम उसके बेसिक्स पता करें, हमें पता हो कि वो टारगेट क्या करता है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, उसका पर्पस क्या है, और हमने क्या करना है उसके साथ. मैं इसकी एग्जांपल बेसिकली लोगों को इस तरह देता हूँ कि मेरा नाम खिजर है, मेरे वालिद का नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, और मेरी इंफॉर्मेशन कलेक्शन करनी है. जब भी किसी चीज को टारगेट करने से पहले आप उसकी जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो आपके लिए सबसे बेटर होगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने शॉपिफाई का प्रोग्राम या स्पॉटिफाई का प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया है और आपने कोई टारगेट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की, आपको नहीं पता कि वो वर्डप्रेस रन कर रहे हैं, कौन सा वर्जन रन कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि उनका सीडीएन किधर है, आपको नहीं पता कि उनका हेड ऑफिस किधर है. दैट्स ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट. आपको पता होना चाहिए कि आपके टारगेट का हेड ऑफिस किधर है. आपको पता होना चाहिए कि आपके टारगेट ने पहले कितनी रिपोर्ट्स रिजॉल्व की हैं, आपने कुछ ओल्ड रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए आपको. आपने बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. सो रेकन में बेसिकली आपने इंफॉर्मेशन कलेक्शन करनी है, जिसमें आपने आपने उसके सब डोमेन्स फाइंड करने हैं, आपने उसकी डीएनएस इंफॉर्मेशन निकालनी है. देयर आर अलॉट ऑफ टूल्स फॉर दीज थिंग्स, हम उनको टूल्स में भी डिस्कस कर लेंगे. लेकिन आपने बेसिकली उसकी इनफ इंफॉर्मेशन निकालनी है कि आपको उसके बेसिक्स पता हो. अगर हम आपने एड सर्विस आइडेंटिफाई करने हैं, आपने रोबोट्स डॉट टीएक्सटी जो भी अपने वो करने हैं, आपने लॉजिक ऑफ फंक्शनैलिटी अंडरस्टैंड करनी है, आपने सबसे इम्पोर्टेंटली ऑटोमेटिक स्कैनर्स. इसको मैंने इसलिए स्पेसिफिकली लिस्ट डाउन इधर किया है. होता क्या है कि बहुत से न्यू कमर्स आते हैं, वो स्कैनर्स जो 2010 2013 2014 2015 में यूज होते थे ऑन पब्लिक साइड,
क्योंकि अब वो कंपनी के पास स्कैनर्स पहले से मौजूद हैं, कंपनीज कैन स्कैन देयर एसेट्स देमसेल्फ, सो व्हाई डू यू नीड टू स्कैन? आपको ऑटोमेटिक स्कैनर्स की जरूरत नहीं है, नेसिस हो गया, एक्यूनेटिक्स हो गया, यू डोंट नीड देम, यू नीड योर सेल्फ, यू नीड सम ऑफ योर टूल्स। आपको जब आप कोई चीज बिल्ड करने जाते हैं तो आपको स्पेसिफिक टूल्स चाहिए होते हैं, लेकिन आप कंप्लीटली एक घर को नहीं बना सकते बैठे बैठे, ऑटोमेटिक स्कैन नहीं कर सकते। तो ऑटोमेटिक स्कैनर्स को ना यूज करें, ना आप उससे कुछ सीख सकेंगे। हाँ, सर्टेन कंडीशंस में आपको उसकी जरूरत होती है, आपको नेसिस की जरूरत होती है, आपको एक्यूनेटिक्स की भी जरूरत होती है, लेकिन वो सर्टेन कंडीशंस बग बाउंटी में नहीं है। बग बाउंटी में यू गोना वेस्ट योर टाइम अगर आप स्कैनर्स ही चलाते रहेंगे, बिकॉज स्कैनर्स जो हैं वो दे आर जस्ट गोना स्कैन, और उसमें ये होगा कि एवरीबडी कैन स्कैन इट, हर कोई स्कैनर को स्कैन कर सकता है। तो आपने स्कैनर से दूर रहना है और आपने पहले अपने टारगेट की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकेंगे। हम एक टारगेट सेलेक्ट करते हैं और हम उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, एज एन एग्जांपल है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम अपने टारगेट को इतना जान चुके हैं कि हम उसको थोड़ा बहुत टेस्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें जो टूल्स हैं, आपने जो स्टार्ट करना है फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग फॉर एनीथिंग, आपको टूल्स चाहिए। सो यू कैन यूज बर्ब स्वीट, ओएस, जैप, you can use fuzzers, you can use scripts, you can use uh, wayback machines to go and look back on your target. आप who is information उसकी चेक कर सकते हैं, डोमेन की, आप उसके आईपी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यू कैन सर्टिफिकेट्स चेक कर सकते हैं। आपने अपने टारगेट की इतनी इंफॉर्मेशन निकालनी है कि आपको पता हो कि आपका जो टारगेट है वो क्या करता है। सो हाउ डू यू अप्रोच टारगेट, लाइक व्हाट्स योर ओन वर्किंग प्रोसेस, फाइंड फर्स्ट व्हाट टाइप ऑफ इम्पोर्ट। ओके, मेरा वर्किंग प्रोसेस जो है इट्स प्रीटी सिंपल। मैं वही बात करने लगा था नेक्स्ट के, हाउ डू आई अप्रोच अ टारगेट। सो मैं करता क्या हूँ कि आई सिंपली सिलेक्ट अ टारगेट दैट सूट्स मी, I go on and run subdomain scan on it. Even if it's not in scope, I do run subdomain. अगर subdomain scan scope में नहीं है, I do run that. हर किसी को नहीं कहता कि करना चाहिए। Why do I do it? ताकि मुझे information हो जाए कि what kind of services they have. ताकि अगर sometimes होता ये है कि I found a bug on the main website, but I need a bypass for it to make a proper report, तो वो हम subdomain के थ्रू शायद कर सकते हैं। तो you can try it out. लेकिन सर्टेन पॉलिसीज आपके इस तरह के बग्स को कैंसिल आउट भी कर देती हैं। लेकिन व्हाट डू दिस, उसके बाद मैं आई रन फफ और डे सर्च और डे बस्टर, एनीथिंग दैट गिव्स मी और रन्स माय वर्ड लिस्ट अगेंस्ट माय टारगेट, ताकि मुझे डायरेक्टरीज का थोड़ा इशू हो जाए, मुझे आइडिया हो जाए कि डायरेक्टरीज क्या हैं, कौन सी फाइल्स हैं, क्या सिस्टम रन होगा, या कोई ऐसी चीज जो मेरे लिए इंफॉर्मेशन गैदर कर दिया मुझे टारगेट की। आफ्टर दैट आई जस्ट सिंपली सिट बैक, मैं वेबसाइट हो, ऐप हो, एनीथिंग इट इज, आई जस्ट विजिट इट। मैं वर्ब स्वीट यूज करता हूँ और मैं वर्ब स्वीट में पॉलिसी में उसको स्कोप में ऐड कर देता हूँ टारगेट को, और आई जस्ट सिंपली गो ऑन एंड स्टार्ट विजिटिंग दैट वेबसाइट। मैं एक दफ़ा कोशिश करता हूँ कि लेट्स गो हियर, फॉर एग्जांपल मैंने शॉपिफाई को सिलेक्ट किया एज अ टारगेट, स्पॉटिफाई को, सो आई जस्ट डाउनलोड द वर्ब फाइल इनटू माय डेस्कटॉप। बिकॉज हैकर वन पे एक ये अच्छी है कि आप अपने टारगेट्स की वर्ब सूट फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अपने वर्ब सूट में जाके प्रोजेक्ट के अंदर आप लोड कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आपके ये स्कोप के अंदर सारे टारगेट्स आ जाते हैं और यू कैन सिंपली जस्ट सेलेक्ट दैट वन टारगेट, ताकि आपकी जो हिस्ट्री है वर्ब की, या जो आपका टारगेट हिस्ट्री है वो दूसरी वेबसाइट से अ, ना हो जाए, फिलअप ना हो जाए। तो हाउ डू लाइक व्हाट्स योर ऑन, सो ओके, मैं आपको थोड़ा बहुत करके दिखा रहा हूँ। डू वी हैव टू टेस्ट ऑल मेंशन, अच्छा ये हो गया। अच्छा, लेट्स से दैट्स माय टारगेट, आई एम गोना चूज spotify.com। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब डोमेन स्कैन रन करता हूँ, या मैं सिंपली spotify.com को विजिट करता हूँ एंड आई चेक। जब मैं विजिट करता हूँ तो मेरा बर्ब सूट रन होगा होता है और मेरे पास टारगेट हिस्ट्री पीछे बन रही है।
आई डू नॉट टेस्ट राइट अवे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा टारगेट क्या है, वो क्या करता है, उसमें कौन से लिंक्स हैं, वो क्या कर रहा है, मुझे नहीं आइडिया अभी। तो मैं सिंपली उसको विजिट करता हूँ, और विजिट करने से आई कैन सिंपली visit it. I can see they have a lot of pages. They have about page. Uh, they have downloads page, or they have a sign up page. So I'll just simply gonna sign up with. I know कि email real नहीं है ये, लेकिन just as a test case, I'm just gonna send this email. Uh, इसमें simply क्या है कि I'm just gonna send a falsify request to my target, जिससे मुझे ये आइडिया होगा कि टारगेट के जो रिक्वेस्ट है बैक एंड पे वो किस तरह जा रही है। अगर मैं आई हैव जस्ट ओपन द पेज राइट नाउ, मैंने कुछ नहीं किया, देयर इज अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट गोइंग ऑन स्पॉटिफाई पे, तो आई एम जस्ट गोना मेक अ हिस्ट्री ऑफ माय टारगेट। ये मेरा एक बैकएंड का प्रोसेस है, या मैं इसको फॉलो करता हूँ। उससे सिंपली फायदा ये होता है कि एक हिस्ट्री बिल्ड होती रहती है, एंड आई कैन टेक इट टू नेक्स्ट लेवल। वो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। अब आई एम जस्ट गोना फॉलो द प्रोसेस कि वेबसाइट किस तरह एक अकाउंट को रजिस्टर करती है। सो ये अकाउंट मेरा एक रजिस्टर हो गया या हो रहा है, जिसमें एक ईमेल चली जाएगी, या मेरा अकाउंट उनने, अब पहली चीज मुझे पता लग गया कि दे डोंट यूज एनी सॉर्ट ऑफ ईमेल वेरिफिकेशन राइट अवे। तो आई एम जस्ट गोना नोट इट डाउन इन माय नोट्स। नोट्स टेकिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अभी वैकन को थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। वैकन से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नोट्स। नोट्स का ये फायदा होता है कि इट्स नॉट लाइक यू कैन लर्न एवरी कमांड। यू आप सीख तो सकते हैं, बहुत लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी भी होती है, बट इट्स नॉट लाइक यू गोना बी एबल टू लर्न एवरी कमांड। तो आप कर ये सकते हैं कि यू कैन जस्ट मेक अ नोट्स फॉर योरसेल्फ। मैंने अपने लिए एक नोट्स की लिस्ट बनाई हुई है। इट कंटेन ऑलमोस्ट एवरी command I need on daily basis, or I need doing pen test, doing bug bounty, doing CTFs। उसमें इजी क्या है मेरे लिए कि इवन इफ आई एम बिजी, क्योंकि आपका बग बाउंटी में भी, सीटीएस में भी, पेन टेस्ट में भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यू कैन मेक नोट्स फॉर योरसेल्फ, एंड यू कैन simply go down on your notes, and if you wanna find a word count, you can just simply see that command and type it again। इससे आपको गूगल पे जाके नहीं करना पड़ता, आपका टाइम सेव होता है, आपका एक कंप्लीट यूनिक आपका एक बना हुआ है। अब मैंने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के नोट्स रखे हुए हैं कि बिगिन बाय ब्राउजिंग द वेब लुकिंग फॉर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। व्हाट डू दे डू, कंपनी क्या कहती है, जैसे स्पॉटिफाई है तो स्पॉटिफाई गिव्स यू म्यूजिक। आर दे हायरिंग, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? हायरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अक्सर ये होता है कि एक कंपनी ने मेंशन किया हुआ है कि दे नीड अ जावा डेवलपर और दे नीड अ पीएचपी डेवलपर। तो you'll simply be able to learn that yes, there are somewhere there's some space in their system that is using the certain program, certain language, certain kind of thing, जिसकी आप पब्लिक एक्सप्लॉइट सर्च कर सकते हैं, और आपको पता लग सकता है कि वो ऐसी क्या चीज यूज कर रहे हैं जो आई शेयर द नोट्स। मैं कर दूंगा शेयर, कोई इशू नहीं है इनके लिए। फिर कौन से डिपार्टमेंट्स इनके पास एग्जैक्टली उनकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको पता होना चाहिए कि उनका हेड ऑफिस किधर है। आपको पता होना चाहिए उनके ऑफिस किधर है, आपके करीब ऑफिस किधर है, जाना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अ, उनकी लोकेशंस क्या हैं। आपको उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, आपको फ़ोन नंबर्स, आपको ईमेल्स। आई यूज़ hunter.io फॉर ईमेल्स। मैं सिंपली हंटर को यूज़ करता हूँ बिकॉज़ इसमें आप ईमेल्स उनकी निकाल सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ सिंपल एक्सटेंशन फॉर यू। तो मैं ये यूज़ करता हूँ। इसी तरह आपको कंपनी का साइज़ पता होना चाहिए कि गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, कितने यूज़र्स हैं। जैसे मैंने कहा कि आप हू इज़ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आपको आप उसके लिए हू इज़ का कमांड यूज़ कर सकते हैं, आप डोमेन पे कर सकते हैं, रिवर्स हू इज़ कर सकते हैं। आप को बेसिक डीएनएस इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आप गैदर इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं उनकी एमएक्स टूल्स बॉक्स से। डिफरेंट वेबसाइट हैं। इसके बाद आपको यहाँ तक तो ये प्रोसेस आपकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होगी ना, ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होगी दैट वी शुड नेसेसरीली नो अबाउट अवर टारगेट। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हमारा टारगेट क्या है। अच्छा, बहुत से लोग बग बाउंटी को एक इस तरह लेते हैं जैसे बग बाउंटी इज बेसिकली फन fun activity, but for me I take it not as a passion but as a profession। I'm doing it from 7 years। मैंने फर्स्ट रिपोर्ट अपनी 2014 में की थी, एंड मैंने 2016 में पहली बाउंटी मिली थी मुझे। सो इट टुक मी 2 years टू
अर्न सम मनी फ्रॉम माय बग बाउंटी। बट उसके बाद आई आई रिमेम्बर कि कोई ऐसा मंथ नहीं है जिसमें मुझे बाउंटी ना मिली हो, 2016 जनवरी के बाद से नहीं। तो आई टेक इट एज अ प्रोफेशन, नॉट एज अ पैशन। सो आपने पहले यही डिसाइड करना है, प्रोफेशन या पैशन। बट आई वांट टू रिकमेंड एवरीवन टू गो फुल इन, जंप इन बग बाउंटी राइट अवे। आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो आपको इसीलिए बग बाउंटी को एज अ प्रोफेशन अगर आप लेके चलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू आर अप्रोचिंग योर टारगेट, आपका टारगेट क्या है, आप उसमें क्या चीज मिस कर रहे हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपको पता है कि स्पॉटिफाई की स्पोर्ट की वेबसाइट इधर है तो यू जस्ट गोना मिस इट। नहीं, आप स्पॉटिफाई की स्पोर्ट की वेबसाइट पे जाके उनका पढ़ सकते हैं यार कि गेटिंग प्रीमियम स्टूडेंट कार्ड, आपको प्रीमियम स्टूडेंट कैसे मिलता है। आपको पता लग जाएगा कि हायर एजुकेशन ये शेयर आईडी के थ्रू करते हैं, या प्रीमियम स्टूडेंट के लिए आप स्टूडेंट की वेबसाइट, स्टूडेंट वाली लिंक पे जाके कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट बिल्डिंग माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सिस्टम, जो मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। उससे एटलीस्ट आपके लिए इतना आसान हो जाता है टू टेस्ट योर टारगेट कि आप कंफ्यूज नहीं होते अपने टारगेट के अंदर। ऐसे नहीं है कि आपने एक टारगेट आज सिलेक्ट किया है तो आप उसको आज ही छोड़ देंगे, नहीं। इसमें अलॉट ऑफ वेबसाइट्स हैं, इतने सब डोमेन्स हैं, इतने डोमेन्स हैं कि आप इसको मिस नहीं कर सकते। यू कैन जस्ट स्पेंड मंथ्स ऑन इट एंड यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ रेपुटेशन पॉइंट्स, व्हाटएवर प्रोग्राम जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। तो पहली अप्रोच तो आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होनी चाहिए। यू शुड नॉट जस्ट, होता क्या है बहुत से लोग कहते क्या है कि दे जस्ट गो ऑन, एक लिस्ट पे जाते हैं जिसमें वो जाते हैं एक्सरसाइज इंजेक्शन की लिस्ट उठाते हैं गिटहब से, एंड दे जस्ट गोना बी लाइक कॉपी ऑल ऑफ दीज एंड कॉपी करके उसको स्पॉटिफाई के जा अपने टारगेट में जाके उसको पेस्ट कर देंगे जहां पे भी उनको लोकेशन मिलेगी। लेकिन उससे इशू क्या होगा कि ये काम तो हर कोई कर रहा है, लाइक कर चुके हैं, कंपनी खुद कर चुकी है ये काम, तो वाई शुड यू डू इट। आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको पहले अपने टारगेट को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट योर टारगेट डज। अब इसमें इतनी अकाउंट सेटिंग्स हैं, रिकवर प्लेलिस्ट, रिसीप्ट्स हैं, इसके अंदर एप्स हैं, रिडीम है। तो यू नीड टू टेक योर टाइम, understand your target. I almost take a week to understand my target before I jump in. उससे ये होता है कि आई एम एबल टू अंडरस्टैंड माई टारगेट। मैं अपने टारगेट को नैरो डाउन करके उससे इतनी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ कि मुझे जब मैं एक्चुअल बग हंटिंग की तरफ आऊंगा तो मुझे अपना टारगेट की इंफॉर्मेशन पता होगी। एक और इम्पोर्टेंट स्टेप जो मैं लेता हूँ, जैसे मोहम्मद याकूब ने पूछा था कि मेरा क्या अप्रोच है, तो दिस इज हाउ आई डू। पहले मैं सिंपल वेबसाइट्स विजिट करता हूँ, आई जस्ट साइन अप, आई बिकॉज मुझे इंटरसेप्ट करने की जरूरत नहीं है, मेरी एवरी रिक्वेस्ट जो मैं कर रहा हूँ वो यहाँ पे जा रही है। तो मैं इसको बाद में गो थ्रू कर सकता हूँ इसमें, या मैं यहाँ सर्च कर सकता हूँ कि सीक्रेट है तो वो सीक्रेट किधर जा रहा है, या पासवर्ड है तो वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में पासवर्ड किधर है। तो आई कैन जस्ट सिंपली चेक एवरीथिंग है, तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तो दिस इज समथिंग कि मैं सिंपल वेबसाइट्स विजिट करता हूँ सिर्फ फॉर अ फ्यू मिनट्स, फॉर अ फ्यू आवर्स समटाइम्स, ताकि मुझे अपने टारगेट की इन्फॉर्मेशन हो। सेकेंडली, आई मेक सम सॉर्ट ऑफ माइंड मैप ऑफ माई टारगेट। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल माइंड मैप बनाया हुआ है कि ये होम पेज था, ऑर्गेनाइजेशन का अपना पैनल है जो सब कुछ एक्सेस कर सकता है। लेकिन जब आप लॉग इन करते हैं, आपके पास एक लॉग इन गाइड है यूजर, एक है एडमिन। अब एडमिन का अलग यूजर है, अलग डैशबोर्ड है, और एडमिन जो है वो यूजर डैशबोर्ड भी कर सकता है और एडमिन डैशबोर्ड भी कर सकता है। सो आई एम जस्ट गोना मेक अ माइंड मैप ऑफ माय टारगेट कि यार ये लिंक्स इधर जा रहे हैं, ये लिंक इधर जा रहे हैं, ताकि इवन इफ आई एम कमिंग बैक टू माय टारगेट आफ्टर 6 मंथ्स या एन ईयर, मैं ये देखूंगा यार कि एक साल पहले ये वाला एरिया यहाँ पे नहीं था, ये वाला एरिया था, अब ये आ गया है, तो मतलब आई कैन टेस्ट अनदर थ्योरी, आई कैन टेस्ट माई ओल्ड रिपोर्ट्स अगेन। तो यू शुड मेक योर ओन माइंड मैप ऑफ समथिंग और सम सॉर्ट। उससे आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है अपने टारगेट को अप्रोच करते हुए, ताकि आपके टारगेट की इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास हो कि जब आप अपने टारगेट को टच भी करें तो यू यू हैव एन आइडिया कि यार मुझे पता है कि ये रिक्वेस्ट कैसी जानी है, ये रिक्वेस्ट कैसे कर रही है, या कुछ भी है तो वो कैसे है। उसके अलावा उनके सोशल पेजेस विजिट करना इज नॉट रियली नेसेसरी। लेकिन होता क्या है कि अक्सर जब आप सोशल पेजेस विजिट करते हैं, उन्होंने वहाँ पे रिडेम्पशन कोड्स दिए होते हैं, 50% ऑफ, 30% ऑफ। अक्सर कंपनीज करती हैं ये। समटाइम्स होता ये है कि एक ही कोड उन्होंने 10 दफा अलाउ किया होता है, लेकिन आप वही कोड को 100 दफा यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अ बग।
दिस इज काइंड ऑफ अ बग, आप रेस कंडीशन और वट एवर यूल कॉल इट, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर अप्रोच कि आप टारगेट को किस तरह अप्रोच कर रहे हैं। सेकेंडली, क्योंकि आपने खाली गूगल अपनी जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है अपने टारगेट की, वो आपने खाली बेसिक डीएनएस इन्फॉर्मेशन या हुईज इन्फॉर्मेशन से नहीं करनी, आपने दूसरे सोर्सेज भी यूज करने हैं। आपने पोर्ट स्कैनिंग करनी है, आपने गूगल से करनी है, आपने डिफरेंट चीजें करनी है। तो आपने, जैसे मैंने यहाँ नोट्स में गूगल डॉक्स मेंशन किया हुआ है, तो यू जस्ट गोना गो टू गूगल एंड यू जस्ट गोना टाइप फॉर एग्जांपल गूगल के डॉक में साइट spotify.com, I'll include subdomains as well. और अगर आप चाहते हैं कि मैं थर्ड लेवल subdomains, तो you can just use something like that. तो you're gonna get different subdomains depending on आपने जो सर्च की है। अगर मैं जाता हूँ, आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो आप ढूंढना चाहें गूगल से, गूगल डॉकिंग के थ्रू। सो गूगल डॉकिंग इज योर नेक्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड योर टारगेट, टू अप्रोच योर टारगेट। इसके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, गुड फ्रेंड फैसल अहमद हिज नेम इज, उसने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है docs.faisalahmad.me. You can just go put your target in there, directory listing, it's just gonna list all the places जहाँ पे आपकी टारगेट की directory list हो रही है। So uh, you can use this to go through a lot of information gathering process or a lot of basic reckon process। क्या आप देखना चाहते हैं यार कि मेरा जो डोमेन है वो वे बैक मशीन में कितना पीछे तक जाता है, तो यू कैन जस्ट सर्च इट एंड वो आपकी सर्च करने लग जाएगा। एक्सपोज कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, तो दिस इज द बेसिक स्टेप फॉर रेकन कि आप अपने रेकन प्रोसेस को इतना फाइन कर लें कि आपको 50% बग्स तो आपको रेकन के अंदर ही समझ आ जाए कि यार दिस फंक्शनैलिटी माइट हैव अ बग। आप रेकन के दौरान उनकी एपीआई के अंदर जाएं। अच्छा, अनदर थिंग व्हाट आई डू फॉर ड्यूरिंग रेकन प्रोसेस इज समटाइम्स कंपनी का स्कोप बहुत छोटा होता है, एपीआई बहुत बड़ी होती है, तो आई जस्ट यूजली गो एंड एपीआई डॉक्यूमेंटेशन एंड आई जस्ट रीड द एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत कोडिंग का, थोड़ा बहुत वेब का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मुझे यहाँ से पता लग जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ टोकन दे आर यूजिंग, वो क्या कर रहे हैं, व्हाट इज समथिंग जो मैं मिस कर रहा हूँ, या मैं देखना चाह रहा हूँ यार कि प्राइवेट रिक्वेस्ट जो है क्या पता उनने मेंशन की हो, और वो प्राइवेट रिक्वेस्ट जैसे इनवैलिड सीक्रेट है, कैन आई बाईपास इट। सो रीडिंग दिस, टेकिंग योर टाइम टू प्रॉपरली गो थ्रू योर टारगेट इज समथिंग जो हर किसी को करना चाहिए डूइंग बग बाउंटी। और ओनली दिस इज अ वे टू एक्सेल एट योर टारगेट, ताकि आपको आइडिया हो कि यार मैं अपने टारगेट को किसी तरह से ले रहा हूँ, कुछ चीजें मैं मिस नहीं कर रहा उसके लिए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं रिपोर्ट की। सो आई एम जस्ट गोना आई हैव अ रिपोर्ट जो मैंने सेव की थी गिटहब की। आई वाज टॉकिंग अबाउट रेकन, तो लेट्स टॉक अबाउट गिटहब रेकन एज वेल। जैसे कि हमारे पास बिकॉज ये वेबसाइट मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ यस यूज़ हिज वेबसाइट और हिज सर्विस, आपके लिए आसान हो जाता है। अब इसने एक चीज़ मेंशन की हुई है गिटहब। गिटहब रेकन इज लाइक अ बिग थिंग। गिटहब पे पब्लिक रिपोजिटरीज हैं, लोग गिटहब पे अपना कोड पोस्ट करते हैं, अ लॉट ऑफ टाइम्स दे लीव स्टफ देयर। और जब चीज़ें वहाँ पे रह जाती हैं, तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने spotify.com लिखा है और यहाँ पे सर्चिंग गिटहब, यू कैन सिंपली गो टू गिटहब एज वेल, कि आपने गिटहब खोला और आपने यहाँ पे डोमेन डाल दिया और आपने पासवर्ड लिख दिया, तो ऑलमोस्ट एवरी प्लेस जहाँ पे कोड के अंदर गिटहब का .com वाला डोमेन और पासवर्ड साथ होगा, आपको वो नजर आ जाएगा ऑलमोस्ट। आप उसमें डिफरेंट कम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह आप गूगल गिटहब पे जब आप टेस्ट करेंगे, तो आपको फिर गिटहब के डॉक्स भी अपने बनाने चाहिए। तो आई हैव दिस लिस्ट ऑफ गिटहब डॉक्स के फाइल नेम, डिप्लॉयमेंट की, अदर स्टफ, तो आप गिटहब के डॉक्स भी बना सकते हैं। बिकॉज उससे ये होता है कि आप जब डिफरेंट कम्बिनेशन ट्राई करते हैं, यू वांट फाइंड एटलीस्ट देयर इज अ टाइम जब आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि यार यू वांट मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इट। मैंने देखा है कि स्नैपचैट की एक रिपोर्ट थी, अ गाय रिपोर्टेड Snapchat
that he found API token or something on GitHub publicly, and he got $15,000 for it. So इट जस्ट मैटर ऑफ फैक्ट कि आप कितना डीप डिग कर सकते हैं, किस किस्म के डॉग्स यूज कर सकते हैं फॉर किस किस्म के डॉग्स को मैच कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम ये डॉग लेते हैं एंड आई एम जस्ट गोना पोस्ट इट हियर, सो इट्स नॉट गोना शो एनीथिंग राइट नाउ फॉर स्पॉटिफाई आई गेस. हाँ नहीं है, बट अगर मैं इसको खाली पोस्ट करता हूँ यहाँ पे तो आपको बहुत सी कीज और स्टफ मिल सकता है. सो गिटहब इज प्लेस जहाँ पे आप ज्यादा सारी चीजें ढूंढ सकते हैं. और मैं आपको इसकी रिपोर्ट एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि आई थिंक माय रिपोर्ट जस्ट आई हैड टू हाइड द प्रोग्राम बिकॉज पॉलिसी थी, प्राइवेट प्रोग्राम था, बट बेसिकली इट वाज नथिंग. आई जस्ट डिड github.com यूजर नेम पासवर्ड एंड मुझे वहां से यूजर नेम मिला, पासवर्ड मिला, जो मैंने उनके अकाउंट पे यूज किया. उसके अंदर ईमेल उनके डोमेन की थी, और आई वाज एबल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर यूजर्स बिकॉज दैट प्रोग्राम इवन दो इट वाज अ टेस्टिंग अकाउंट बट गिटहब पे लीक था बिकॉज दे वर स्क्रैपिंग यूजर्स डेटा यूजिंग देयर ओन स्क्रिप्ट, और वो गलती से पब्लिक हो गई और मुझे वो मिल गई. जब वो मुझे मिली मैंने उनको रिपोर्ट किया एंड राइट अवे. Good. यस, also include certificate based search as well. Yes, definitely. Well, sir, certificate based search is important ताकि आपको उनकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग में तो सर्टिफिकेट डीएनएस उनके आईपी बेस्ड शोडान पे आई लुक एट zoomeye.org. सो दिस इज समथिंग कि वैक्यूम के प्रोसेस के अंदर डेफिनेटली इंक्लूड होना भी चाहिए और होता भी है. समटाइम्स आई डू मिस इट बट आई गो बैक एंड कंप्लीट इट. सो कमिंग बैक टू इट के सिंपली गिटहब पे फाइंड करने से यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ बाउंटीज एज वेल. बट हर जगह गिटहब पे ऐसे नहीं होता कि आपको मिल जाए, क्योंकि मैं खाली google.com लिखूंगा और पासवर्ड लिखूंगा तो मुझे पासवर्ड नहीं मिलेगा. उसके लिए आपको अपने गिटहब के अकाउंट को इंक्रीज करना पड़ता है. आपको इसके अंदर गिटहब के अकाउंट के लिए डिफरेंट टूल्स हैं that you can use. git search है, git secret searcher है, there are a lot of tools on github as well. अगर हम सिंपल लिखने github secret search, so हमें टूल Yes. टूल्स मिल जाएंगे. पॉन गिट है, गिट सर्च एप्लीकेशन है, गिट डॉग्स है, that we can use to find github stuff. सो यहाँ तक तो हमारा बेसिक वैकन का स्टफ हो गया कि हमने अपने टारगेट को विजिट कर लिया, उसका वैकन कर लिया, उसकी चीज़ें सर्च कर ली, उनकी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, हमने गिटहब पे वैकन कर लिया, हमने उनकी सर्टिफिकेट सर्च, हमने उनके सब डोमेन स्कैन के लिए भी हम टूल्स यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर बहुत से टूल्स हैं. सब स्कैनर है, सब लिस्टर है, एक्यूटोन है, आई गेस a lot of tools बहुत ज्यादा है. लेकिन as long as you are understanding how your tool work, आप अपने वेपन प्रोसेस को मल्टीप्लाई करके डिफरेंट चीजें सीख सकते हैं. उससे आपके लिए बहुत आसानी भी हो जाती है, आपका टाइम भी सेव होता है, आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है अपने टारगेट की कि आप नोट्स बना सकते हैं, आप माइंड मैप बना सकते हैं अपने टारगेट का. आप बेसिक स्टफ जो लोग लोग बाकी कर रहे हैं आप उनसे थोड़ा बेटर कर सकते हैं. बिकॉज ओनली यू कैन ओनली एक्सेल एट बग बाउंटी जब आप दूसरों से कुछ मुनफिद कर रहे हो, डिफरेंट कर रहे हो. तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने टारगेट के लिए सर्च करें, अपने टारगेट को विजिट करें, अपने टारगेट को अंडरस्टैंड करें, उसकी फंक्शनैलिटीज को अंडरस्टैंड करें और गिटहब पे स्कैन करें, आप उसकी डिफरेंट चीजें सर्च करें. तो यहाँ तक तो हमारी इनिशियल अप्रोच और हमारा वैकन का प्रोसेस हो गया और हमारे बेसिक टूल्स हो गए कि हमने नोट्स बना लिए, हमने गिटहब और वे बैक मशीन चेक कर ली, हमने बेसिकली उनकी इंफॉर्मेशन फाइंड कर ली. सो व्हाट्स नेक्स्ट? अब उसमें नेक्स्ट क्या आता है? अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट जाने से पहले आई बी हैप्पी टेकिंग एनी क्वेश्चंस, ताकि जो कंफ्यूजन है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत स्लो तो गए हैं लेकिन हमने तेज भी चीजें मिस भी की होंगी, तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आई एम हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस.
uh, find my first bug. Okay, like I mentioned, मैंने पहला bug 2014 में report किया था. तो at that time it didn't take me long to find that first bug because it was उस वक्त तो बहुत ज्यादा bugs होते भी थे. ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब कंपनीज खुद अपने पेन टेस्ट करवाती हैं. आफ्टर पेन टेस्ट दे रन अ प्राइवेट प्रोग्राम एंड समटाइम्स प्राइवेट प्रोग्राम्स रन फॉर इयर्स एंड देन गेट पब्लिक. तो बहुत से लोग जो स्टार्ट कर रहे होते हैं उनके लिए बग्स फाइंड करना मुश्किल हो जाता है. So for me, finding my first bug was easy thing because उस वक्त bugs find करना भी easy था. And honestly speaking, मैं अगर आपको बताऊं तो मेरा पहला bug was not a big bang or anything. It was simply click jacking. So हाँ, अगर हम बात करते हैं कि पहला bug for bounty that I got in 2016. It took me around a week of testing my target, and eventually I found it and I used almost the same methodology जब मैंने यहाँ पे की कि मैंने information gather की, understand किया उसके target को और फिर jump in करने के बाद it took at least 7 days to find that first bug जो मैंने 2016 में find किया था, that for which I got my first ever bounty for it. So it took me a week. और अब भी जब मैं अपने टारगेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आई टेक एट लीस्ट a month or 2 months to go through my target and testing and reporting. And उससे एक फायदा ये भी होता है कि आई कैन जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस. नोट्स बनाए होते हैं, सब कुछ माइंड मैप बना होता है. मैं बार बार टारगेट पर वापस आता हूँ, हमेशा उनकी अपडेट्स देखता हूँ. तो इट हेल्प्स मी आउट. एनीथिंग एल्स? यस, जैसे मैंने मेंशन किया कि आई डू रीड एपीआई डॉक्यूमेंट्स ऑफ माय टारगेट्स और वो मैं रैकिंग की स्टेज पे ही करता हूँ. बट इट्स नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय रैकिंग स्टेज बिकॉज पहले तो मैं सिर्फ टारगेट को अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ, या मैं कहता हूँ सिर्फ टारगेट को अंडरस्टैंड किया जाए ताकि आपको अपनी टारगेट की इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि आप अगर आप डायरेक्टली उसकी एपीआई में मैं जंप इन कर लेता हूँ तो इट्स नॉट गोना डू एनी गुड टू मी कि मुझे टारगेट के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. बट देयर इज अ पार्ट और राइट आफ्टर माय रैकन जिसमें मैं बग्स ओएस टॉप 10 नहीं फाइंड कर रहा होता. आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग देयर फंक्शनैलिटी. उस दौरान मैं एपीआई डॉक्यूमेंट्स रीड भी करता हूँ उनके एपीआई डॉक्यूमेंट्स को बिकॉज अ लॉट ऑफ कंपनीज नाउ प्रोवाइड द एपीआई कलेक्शन इन पोस्टमैन. तो मैं उसको पोस्टमैन में कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड आई रन टेस्ट ऑन इट. तो yes, reading their documents, checking their documents, taking URLs out of that documentation, understanding the process from web UI, API from Burp Suite or Zap or anything, and at last checking the same thing from document. उनको कंपेयर किया जा सकता है, उसको मैं कंपेयर करता हूँ. फॉर एग्जांपल एक लॉगिन का प्रोसेस है, आई चेक दैट लॉगिन प्रोसेस फ्रॉम यूआई कि यूआई से कहाँ से लॉगिन हो रहा है, कैसे हो रहा है. Then I go to burp history and check कि burp में कहाँ से हो गया सब कुछ. And at the end I check कि उनकी एपीआई के अंदर ऐसी क्या चीज मौजूद है जो मुझे लॉगिन दिखा रही है, लॉगिन कर रही है. So I can replay that and understand the process like that. Anything else? How often do I achieve RC level bug? I'll say RCE maybe once every 3-4 months or 5 months. साल में एक या दो, एक से ज्यादा नहीं, दो से ज्यादा नहीं. मोस्टली कभी तुक्का लग जाए तो चार भी हो सकते हैं लेकिन नॉट मोर देन 2 ईयर. सो यू कैन से लाइक once every 6 months. I don't necessarily look for RCE as well. I do go for it, but it's after मुझे जब प्रोसेस समझ लग गया हो कि यार ये वेबसाइट इस तरह अपना सिस्टम चला रही है, there might be some sort of an remote code execution bug here or code execution bug here, तो मैं चेक करता हूँ. And then necessarily I first go for the understanding of the functionality. बिकॉज अब बहुत सी कंपनीज पहले से, जैसे मैंने कहा कि पेन टेस्ट करवा चुकी होती हैं, तो बहुत से RCE SQL इस तरह के बग्स ऑलमोस्ट फिक्स्ड हो चुके होते हैं ऑलमोस्ट. सो दे आर हार्ड टू फाइंड एंड दे आर नॉट लो हैंगिंग फ्रूट्स. और लो हैंगिंग फ्रूट्स तो वैसे भी अब एलिमिनेट हो चुके होते हैं. तो और वैसे भी इस तरह के बग उनका मेन प्रोसेस के पाइपलाइन के अंदर होते हैं. आई डू टेस्ट देम एंड आई फाइंड अराउंड लाइक in 2021 I have found only 3 by now.
So it's the, I guess, 10th month चल रहा है, 11th month चल रहा है, और 3 मिले, so you can narrow it down. Yes, most of the bugs rely on misconfiguration, but as well as खाली misconfiguration नहीं होती. बहुत सी चीजें एज अ फंक्शनैलिटी वो यूज कर रहे होते हैं जिनको अब्यूज किया जा सकता है. तो इट्स नॉट लाइक एवरी बग या मोस्ट या ऑल बग्स आर थ्रू इट, बट यहाँ तक ऐसे हो सकता है. एनीथिंग एल्स? और मरियम का क्वेश्चन आई गेस शी सेकंड Okay. ले ले. अस्सलाम वालेकुम मरियम, वी वुड लव टू हैव यू ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. आप बस हमारे सोशल मीडिया पे अपना कमेंट छोड़ दो एंड वी कैन गेट यू देयर, और जस्ट यू कैन आल्सो ईमेल मी your number and I can share that group link with you soon. Okay, so if there are any other questions, तो I can answer them, वरना हम एक next stage पे चले जाते हैं. Let's talk about some tools related to bug bounty. QE about misconfiguration. Uh, mm, as a misconfiguration would be basically, अगर उसको बहुत easy लफ्जों में explain किया जाए, तो misconfiguration is something के जो कि कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट के बिल्डिंग के दौरान ऐड की हो, चीज कोई ऐसी हो या मिस कर दी हो, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई परमिशन मिस कर दी हो कि देयर इज अ सर्टेन यूआरएल दैट ओनली एडमिन कैन एक्सेस, बट it's misconfigured, and everybody who knows the URL can access it. So that is some sort of a misconfiguration. तो misconfiguration को इस तरह easily explain किया जा सकता है. नेक्स्ट पे मूव इन करते हैं, ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम भी एन आवर था, बट वी कैन स्ट्रेच इट अ लिटिल बिट. Okay, is there server Alex similar to for response? Sorry. Uh, I couldn't understand your question right away. Is uh, not necessarily, yeah. For is not like आपको server side exception हो, not necessarily. आपको इतना it depends on a lot of factors. तो खाली for is not response giving it like server side exception or anything. तो I guess next पे move in करते हैं, और tools. So let me share my screen once again. Okay, so tools. Basically, bug bounty में जो tools हैं, they are like how you use tools while you build something. For example, आप कोई केक बना रहे हैं, तो there are a lot of tools making that cake. या आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो there are a lot of tools while using that building. इसी तरह जब आप बग बाउंटी में टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो आपकी जो टूल किट है, दैट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर टेस्टिंग. आपके वर्किंग प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं या आप कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं. समटाइम्स आपके टूल की स्पीड बहुत इम्पेक्ट करती है किसी दूसरे बंदे से, क्योंकि बग बाउंटी इज अ पैशन एज वेल, एंड इट आपका फुल टाइम अगर जॉब है आपके लिए या मेरे लिए फुल टाइम जॉब है, तो मुझे टाइम और मेरी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ सब डोमेन टेक ओवर इशू, जहाँ पे एक लेफ्ट ओवर सब डोमेन है दैट एनीबॉडी कैन टेक ओवर. लेकिन मेरा जो टूल है, इट टेक्स 10 minutes टू फाइंड ऑल सब डोमेन्स, और एक बंदे का टूल है जो 3 minutes लेता है, और उस बंदे ने 3 minutes में लेके बाकी 7 minutes में सब डोमेन्स विजिट करके वो टेक ओवर कर लिया है. तो आई एम एट लॉस. सो आई नीड टू मेक श्योर कि जो मैंने टूल किट सेलेक्ट की है, जो मैंने टूल सेलेक्ट किए, जो मैंने टूल बनाए हैं या जो मैंने टूल यूज कर रहा हूँ,
उनकी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देयर आर लॉट ऑफ टूल्स इन बग बाउंटी। अगर हम जस्ट एज अ बेसिक एग्जांपल ले लें तो टू फॉर डीएनएस और सबडोमेन डिस्कवरी देयर इज सबलिस्टेड नॉक, देयर आर जस्ट लाइक जो मेरे को मेरे ओवर द हेड थे तो मैंने यहाँ लिख दिए। लेकिन यहाँ पे दीज आर नॉट जस्ट द फास्टेस्ट राइट नाउ एज वेल, इनसे भी फास्ट हैं। यू कैन यूज एफ एफ यू एफ, दैट्स another domain, सॉरी डोमेन नहीं, टूल। इसी तरह एन मैप, आप मैथ स्कैन एन मैप आप यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक टूल्स। अगर हम देयर अ ग्रेट रिपोजिटरी ऑन गिटहब, अगर मैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं तो यस, ओके। सो दिस इज अ ग्रेट रिपोजिटरी जो कि अपडेटेड भी रहती है और इसमें टूल्स बहुत से मेंशन है। सो लाइक देयर आर लॉट ऑफ टूल्स। अब एक बर्ब सूट है, जैप है, वाईशार्क है। बर्ब इज यूज बाय मोस्ट पीपल। जैप, मैं जैप भी यूज करता हूँ पीछे बिकॉज वो फ्री है। बर्ब सूट या वो पेड है। इस तरह वाई शार्क है। आप अब सिर्फ रेकन के लिए आप एफ एफ यू एफ हो गया, सबलिस्टर, रिसर्च, एमएस। सो बिल्ड विद बेसिकली आपको बताता है कि कैसे बिल्ड हुआ है। बिल्ड विद की जगह आप ये यूज कर सकते हैं वेबलाइजर, इसी तरह वे बैक मशीन। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपकी टूल किट पे डिपेंड करती है, जिसमें मैंने आपको जैसे बताया कि एक सब डोमेन हो गया। फॉर एग्जांपल सिंपल हम एक्सएसएस की बात कर लेते हैं कि एक बंदा बर्बस्यूट यूज कर रहा है, एक बंदा जैप यूज कर रहा है, और समहाउ उसका जैप सही तरह से ना उसने स्कोप मैनेज किया हुआ है, ना उसने चीजें, ना वो सही चीज देख रहा है। और जो बर्ब वाला है ही कैन इजीली गो थ्रू ऑल द लिंक्स एंड सी आई कि हाँ रिफ्लेक्ट में ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ही गोना फाइंड दैट एक्सेस बेटर देन यू। तो अपनी टूल किट मैनेज करनी है। अब उसके लिए ये नहीं है कि आई कैन राइट अवे टेल यू कि यार मैं ये यूज करता हूँ टूल तो ये है। आपने अपने टूल किट्स अपनी टेस्टिंग की, अपनी स्कैनिंग की अ, अंदाज से लेने हैं। आपने उसको उस लिहाज से लेके चलना है। सो दैट्स व्हाई आई मेंशन दिस रिपोजिटरी। ये सारे जो लिंक्स हैं जितने भी मैंने अब तक शेयर किए हैं वो मैं डिस्कॉर्ड में भेज दूंगा, ताकि अगर किसी को नहीं भी मिलते तो दे कैन जस्ट यूज देम। इसी तरह आपकी वर्ड लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वर्ड लिस्ट जो है इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज आप, अक्सर ये होता है कि हमारी वर्ड लिस्ट में एक वर्ड है ही नहीं और वो किसी और की वर्ड लिस्ट में है, और वो उससे उसने कोई बग फाइंड कर लिया है। बिकॉज देयर अ लॉट ऑफ कंपटीशन इज इन बग बाउंटी। तो उसके लिए आपको अपनी वर्ड लिस्ट को अपडेटेड रखना पड़ता है। A lot of the time I build a word list depending on my target itself. Like अगर मैं Spotify टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं उनकी उस अपनी जो वर्ड लिस्ट है वो Spotify के लिहाज से सेट करूँगा, ताकि मुझे आइडिया हो गया दे माइट बी यूजिंग म्यूजिक से रिलेटेड वर्ड्स। So I once found it's an old bug in 2017 I guess, जहाँ मैंने Spotify पे admin dashboard take over किया था। It was a lot different than how I thought because वहाँ पे जो word list use हो रही थी, I built it myself regarding that particular domain of them theirs, ताकि मुझे, क्योंकि मैंने music से related word use किए थे। तो I guess after running my tool for आई गेस 15 आवर्स के बाद जाके मेरी सही थी, क्योंकि मैंने बहुत सी रेट लिमिटेशन को देखना था, सब कुछ करना था। तो आपकी टूल किट, टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दिस इज अ नाइस वे कि जहाँ से अपने टूल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप अपने टूल्स को खुद ही बेसिक टूल्स को बिल्ड भी कर सकते हैं। आप अपने टूल्स या दूसरों के टूल्स लेके, जो पब्लिक टूल्स हैं गिटहब पे हैं, उनको एडिट करके। सो इस तरह आपकी खाली बग बाउंटी की प्रैक्टिस नहीं होती, आपकी कोडिंग की और आपकी बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो टूल किट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोसेस, और आपको अपने टूल्स को उस लिहाज से अपडेटेड रखना है, उस लिहाज से अंडरस्टैंडिंग रखना है। वर्ब की एक्सटेंशंस, अगर आप वर्ब यूज़ करते हैं तो वर्ब की एक्सटेंशन उस लिहाज से यूज़ करनी है। ऑटो रिपीटर हो गया, ऑथमेटिक्स, लॉगर प्लस प्लस, दीज आर जस्ट सम एग्जांपल्स। और ना अब मैं यूज़ करता हूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ब जेएस लिंक फाइंडर। सो बेसिकली इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई रेकन प्रोसेस या माई टेस्टिंग प्रोसेस, जहाँ पे मैं एक वेबसाइट पे जाके उस पेज से जेएस फाइल्स निकालता हूँ, जितनी जेएस फाइल जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, एंड आई लुक फॉर स्टफ इन दो। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट कि आप अपने जो गिव मी सेकंड काइंडली।
ओके सो हमारे पास टाइम भी कम है क्योंकि 6 तक था, 6:30 तक हम कर सकते हैं। अ, हम इसको थोड़ा फास्ट करते हैं, हम थोड़ी सी रिपोर्ट्स की एग्जांपल देख लेते हैं ताकि अ, हमें एक आइडिया हो जाए कि कुछ अब हम कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं जो कि वी यूजली डू इन बग बाउंटी, जिसकी वजह से हमारी जो बग बाउंटी में जो गलतियां हम उनको थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकें। मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। आई रिपोर्टेड दिस 5 years ago. दिस वाज बेसिकली यूआई, बेसिकली क्लिक जैकिंग, जिसको एक अच्छा सा नाम दे के कोशिश की कि उस वक्त आई वाज जस्ट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस 5 years ago, क्योंकि मैंने बताया कि 14 के बाद मैंने ऑलमोस्ट 3-4 साल तो ऐसे ही सीखने में लगाए। सो इट took me a lot of time. I reported a bug without even understanding the process of it. So I got an NA on it. इसी तरह मैंने क्रॉस डोमेन फाइल जस्ट अ थियोरेटिकल बग रिपोर्ट किया जिस पे मुझे NA मिला। तो बेसिकली जैसे प्लीज रीड रूल्स केयरफुली, अपने रूल्स रीड करने, वर्किंग POC देनी है। इसी तरह डिफरेंट बग्स हैं, जैसे फॉर वन एरर पेज जिससे मुझे सिर्फ एरर वर्जन निकला था, दैट्स एन इंफॉर्मेटिव बग। सो आपने कुछ अपने आप अपने रिपोर्ट्स को इस तरह मैनेज करना है कि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो disclose reports on HackerOne is easy. You can just go to HackerOne. You can hackerone.com और आप यहाँ पे RCE लिखेंगे तो you can just read all the reports that include RCE. So you can use Google Docs, वरना जो disclose reports हैं you can read them there. इसी तरह कुछ रिपोर्ट्स के एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल आई रिपोर्टेड this bug where I was able to I was doing a source code review on the Android app, जहाँ पे इशू था कि एक password and username was hard coded in their Android app. I recorded the Android app and started searching it. I found it and then simple initially report लिख दी और report कर दी। रिपोर्ट राइटिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप बग बाउंटी में जाते हैं यू जस्ट गोना सबमिट रिपोर्ट का बटन दबाया, आपने रिपोर्ट सबमिट कर दी। जैसे मैंने आपको क्लिक जैकिंग की एग्जांपल दी, तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपकी रिपोर्ट क्लियर नहीं है। अब ये रिपोर्ट मेरी कोई खास क्लियर नहीं थी, मैंने सिर्फ चीज फाइंड की एंड आई जस्ट रिपोर्टेड इट राइट अवे। उससे हुआ क्या कि उससे हुआ ये कि जैसे ही मैंने रिपोर्ट की तो this was their response: not applicable, 1 point minus, not reproducible, because I was not able to show any sort of impact of this. Because sometimes कुछ passwords या कुछ URLs, कुछ tokens अपनी Android ऐप में कंपनीज या वेबसाइट्स पे कंपनीज एम्बेड करती हैं, जबकि मैंने वो चेक किया और मैंने वो रिपोर्ट कर दी। सो अक्सर ये होता है कि यार वी बी लाइक कि यार शिट, काम खराब हो गया और वी लीव इट। बट अगर आप थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंडिंग अपने प्रोसेस में लाएं, और आई डिड अ लिटिल बिट रिसर्च ऑन इट, कि मैंने उनको दोबारा से भेजा कि जो एपीआई है वो इस पब्लिक एपीआई यूआरएल पे काम कर रही है, यूजर नेम पासवर्ड लेके मैं किसी भी ऑर्डर की डिटेल्स निकाल सकता हूँ। आई रिपोर्टेड इट एंड आफ्टर दैट इट गॉट एक्सेप्टेड एंड आई गॉट इट एक्सेप्टेड एज अ P1। सो दिस इज जस्ट अ रिपोर्ट एग्जांपल कि आपने अपनी रिपोर्ट्स को इंस्टेड, जैसे मेरी ये गलती थी कि मैंने रिपोर्ट, मुझे उनको कमेंट में वो चीज समझानी पड़ी। सो व्हाई नॉट नेक्स्ट टाइम टेक टाइम एंड कंप्लीट रिसर्च के साथ वो रिपोर्ट की जाए, ताकि हमारी जो गलती है वो फिक्स हो जाए और हमें बाउंटी भी सही टाइम पे मिले और हमारी वो बर्न आउट की तरफ ना जाए हम लोग। बग बाउंटी में बर्न आउट्स बहुत ज्यादा होते हैं। यू फाइंड समटाइम्स यू वॉन्ट फाइंड अ बग फॉर अ मंथ एंड यू विल बी लाइक आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बट अक्सर ये होता है। तो इसलिए अपनी रिपोर्ट्स की जो टेम्पलेट है, वो अपनी रिपोर्ट्स की जो राइटिंग है उस पर फोकस करें, अपनी रिपोर्ट्स को प्रॉपरली लिखें, उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करवाएं जो ट्राइजर है, ताकि उसके लिए काम भी इजी हो और आपके लिए भी काम इजी हो। सो दैट्स इट। आपको यहाँ तक आई होप समझ आई हो। कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं लूंगा, एंड में लूंगा, क्योंकि हमारा टाइम कम है। तो वी जस्ट गोना गो विद अनदर एग्जांपल ऑफ अ बग, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि व्हाट हाउ वी कैन टेस्ट आवर टारगेट। अब आई हैड दिस रिपोर्ट जहाँ पे आई वाज एबल टू bypass the file upload functionality. I did nothing. I just embedded the XSS payload
into an image using EXIF tool, and then I uploaded that image. And in when I uploaded it, I just added uh, it like something dot html dot एट द एंड पे हमने एक डॉट डाल दिया. उस डॉट की वजह से दे जस्ट वो जो उनका फिल्टर था जो फाइल की एक्सटेंशन चेक कर रहा था वो बाईपास हो गया, एंड आई वाज एबल टू अपलोड एन एचटीएमएल फाइल ऑन दैट देयर सर्वर. इसी तरह आई वाज एबल टू अपलोड, बिकॉज पीएचपी नहीं एक्सेप्ट हो रही थी, बिकॉज उनका सर्वर जो था एडब्ल्यूएस पे था. एग्जैक्टली आई एम नॉट, मुझे याद नहीं, लेकिन जो फाइल्स थी वो हम जहां भी अपलोड करते थे वो उनकी मेन डायरेक्टरी में जाती थी इमेजेस के अंदर, तो आई कैन यूज दैट टू एन एडवांटेज. सो दिस वाज एन एग्जांपल रिपोर्ट जहां पे मैंने फाइल अपलोड फंक्शनलिटी बाईपास की थी. तो यू कैन यूज इट. इसी तरह आपने, जैसे आपने गलती में देखा कि दिस वाज समथिंग जो मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल रिपोर्ट की थी, जिसमें कोई चीज एक्सप्लेन नहीं की थी, कुछ मैंने कोई इम्पैक्ट कुछ नहीं दिखाया था, या मैंने क्लिक जैकिंग में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं दिखाया था, कुछ नहीं किया था. जबकि मैंने ये जो रिपोर्ट की थी उसके अंदर मैंने कंप्लीट उनको स्टेप बाय स्टेप और लिख के नीचे एक्सएसएस और सीएसआरएफ बाईपास भी दिखाया था. तो सो दिस वाज समथिंग के you should focus more on your report writing skill as well. इसी तरह a recent report that I did around 3-4 months ago, कि जहाँ पे I was able to had limited access to a admin panel by just simply manipulating the response of that request, sign up request, जिसमें मेरा जो रोल था वो यूजर था, and I edited it as admin. I was able to access information of other users. edit नहीं कर सकता था लेकिन I can read it. So that's another bug that can affect a company on a major level. So this one another was another example of a bug. So I guess let's end it here and let's just do a question answer session from here. ताकि अगर कोई भी कोई चीज समझ नहीं आई तो I can extend next 10 minutes and uh, करते हैं इसको. Thank you. Okay, so report should be precise with steps. Yes, report should be precise with steps. Not just with steps. You should use screenshots जहाँ पे आप वीडियो, अच्छा वीडियो रिकॉर्ड करने से एक फायदा होता है, और अक्सर होता क्या है, क्योंकि बग बाउंटी में बहुत सी कंपनीज आपसे बग लेती हैं, और अक्सर ये होता है कि दे जस्ट फिक्स इट, एंड जितनी देर में वो आपकी रिपोर्ट देखते हैं या ट्राइजर देखता है आपकी रिपोर्ट, इट्स ऑलरेडी फिक्स्ड. So that can negatively impact you. तो वीडियो और स्क्रीनशॉट्स might help you a lot in this scenario. मेरे साथ बहुत दफा हुआ है कि कंपनी ने आगे कहा है that bug is not there, फिर मैं उनको वीडियो भेज दी गया, दिस इज द वीडियो आई रिकॉर्डेड इट टाइम स्टैम्प के साथ. तो ये आपके लिए है. तो प्रिसाइज विद स्टेप्स, विद स्क्रीनशॉट्स, विद वीडियो, और विद एक्सप्लॉइट सिनेरियो एंड फिक्स विल गिव यू मच बेनिफिट. अगर आपको एक्सेस मिला है तो आप उसका फिक्स गूगल पे ढूंढ के फिक्स को थोड़ा बहुत अपने लफ्जों में लिख के दे दें. दैट माइट also be a helpful stuff for you. Next question was quite hard to find these bugs. Do you still suggest learning bug bounty? I'll still suggest learning bug bounty, but not just bug bounty. Bugs find करना start में भी hard था, because it always depends on how deep you are gonna find a bug, how deep you're gonna go into an application, how deep you're gonna read their API documents, how deep you're gonna understand their functionality. आप उस पर कितना time spend करते हैं, it always depend on you. I will always suggest learning